Okay, good morning to all. Good morning, sir. Good morning. Okay, so today is our lecture of MA 716. Okay, and this is my first lecture of the problems and exercise in mathematics 1. Okay, this is the name of the course. So, have you gone through the syllabus of the NET examination? आपने नेट एग्जामिनेशन का सिलेबस देखा है एक बार? Yes or no? No, sir. Okay. So basically this course is designed for the combination of the problems of 1 to 5 course. Okay, that means MA11, MA12, MA13, whatever you learn in MSc Sem 1 of 5 courses. So in that course, in this course, we will discuss the problems related to that. So my subject is functions of several variables. So I discuss the problems of functions of several real variables in this lecture. Okay, everybody? Okay, sir. Okay, so functions of several real variables में जो problems हम क्लास में नहीं कर सकते हैं और जो नेट में पूछे जा सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स ये लेक्चर में करेंगे. ओके, डन? अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? यस, रिजॉइस ने तो यस बोला. व्हाट अबाउट अदर्स? Yes, sir. Yes, sir. यस, पार्थ ने भी किया. ओके, नो प्रॉब्लम. Okay, so first I go through the syllabus. You have this copy. If you have not, then please inform me. So I will give you. So this is the course of the NET examination for the Junior Research Fellowship and Lecturership. Okay, so you can see Unit 1 में बहुत कुछ है related to analysis. So in this analysis, our subject is here. You can see on your screen. Okay, so our subject is only the mention about this one. Functions of several variables. There is nothing any bifurcation for this subject. So this subject is your course, but here only one topic is that. Understand everybody? Yes. Okay, so unit 1 में हमारा ये आ रहा है ना, functions of several real variables. So you can see here they mention only the name of the topic. They not give any more specification for this course. Say means इसमें differentiability पूछेंगे या फिर integrability पूछेंगे या फिर continuous पूछेंगे, limit पूछेंगे. They don't give that. Okay, उन्होंने कुछ दिया नहीं है, सिर्फ उन्होंने mention किया है functions of several variables. Okay, so this is the syllabus of the NET examination in unit 2. Whatever you learn in semester 1 and semester 2, all these are in this course. Okay. So now any doubt in this? इसमें कोई डाउट है कि नेट में पूछा जाएगा कि नहीं? Okay, so this is the information for you. Okay, now I want to share another things which is very important for you. So I stop sharing and I open. Yes, is it visible to all? Yes, sir. Okay, so you can see left hand side all the units are there. Okay, means real analysis, that is our unit number 1. Linear algebra, complex analysis. Unit number 2 में algebra, topology. Unit 3 में ODE, PD, numerical, COV, that means calculus of variation. Okay, then integral equation, classical mechanics and statistics. So you can see in November 2020 what is the weightage of the कोर्स. ओके, यहाँ पे कोर्स का वेटेज दिया है कि कितने कितने क्वेश्चंस उसके पूछे गए हैं. अंडरस्टैंड? सो यू कैन सी हियर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस 2017 टू 2020. सो यू कैन सी द रियल एनालिसिस जिसमें हमारा टॉपिक है वो 6 क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाते हैं. लीनियर अलजेब्रा उसमें से 6 मींस अभी तो 2020 में
ये 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। कॉम्प्लेक्स के 4, अलजेब्रा के 3, टोपोलॉजी के 1, ओडी के 2, पीडी के 2, न्यूमेरिकल एनालिसिस का 1, इसका 1 1 1। सो यू कैन सिलेक्ट योर फेवरेट कोर्स एंड स्टार्ट प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। ओके, मीन्स अगर आपको रियल एनालिसिस अच्छा लगता है तो यू कैन स्टार्ट, लेकिन यहाँ पे आप ज्यादा देखेंगे तो दिस विल नॉट मोर इम्पैक्टफुल। ओके, मीन्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है ना, क्योंकि 1 1 1 1 1 मार्क्स में पूछा जाता है। लेकिन इफ यू ऑब्जर्व रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अलजेब्रा, टोपोलॉजी, ओडी एंड पीडी, सो यू कैन सी most of the questions comes from this region. Understand everybody? So this is good analysis for you. Okay, understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I want to share these things to you. B and C, यहाँ पे देखो B C, this is the booklet है ना, B booklet C, उसमें इस हिसाब से पूछा गया था, they indicates it. Okay, सो 2019 में आप देख सकते हो 6 7 है ना, 2019 जून में अगर आप देखेंगे तो 5 9 है, फिर दिसंबर 2018 में 7 5 है, 2018 जून में 9 4। देखो एनालिसिस का वेटेज उस टाइम पे बढ़ गया था, दिख रहा है आपको? सो यहाँ पे 11 भी है, तो मैक्सिमम 11 क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द रियल एनालिसिस। सो ज्यादा रियल एनालिसिस में ही पूछा जाता है, एंड अवर सब्जेक्ट और अवर कोर्स कम्स अंडर द रियल एनालिसिस। ओके एवरीबॉडी, गॉट इट? Yes, sir. Okay, now we go for the question. So you can see on your screen, I again stop sharing this one. Yes, and then back to our PDF. Yes. Yes, so in today's lecture, I will going to discuss about the two main problems which will ask in any examination. Means अगर आप GPSC दे रहे हो या फिर आप नेट एग्जामिनेशन दे रहे हो, आप सेट की एग्जाम जीसेट की एग्जामिनेशन दे रहे हो, ओके, तो जहाँ पर भी आप ये क्वेश्चन देखते हो यू कैन डील विद दिस वे। ओके, मैं आपको वो डिस्कस करने जा रहा हूँ इन टूडेज लेक्चर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? चलो बताओ। इसमें ज्यादातर हम इंटरेक्शन ही करेंगे। ओके, अगर आपको कोई भी आइडिया आता है तो आप डिस्कस कर सकते हो, मुझे आइडिया है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना, तो उस हिसाब से ही हम बोथ दी वे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके, एंड एक्सरसाइज, दैट इज द नेम ऑफ आवर कोर्स। सो थिंक अबाउट फर्स्ट स्टेटमेंट। चलो, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है? True, sir. हाँ, क्या लग रहा है सबको? मैं किसी को पर्टिकुलर नहीं पूछूंगा, बट यू कैन शेयर योर व्यूज। ओके, नो प्रॉब्लम, हम सभी का जो भी आपका गेस वर्क है डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लग रहा है? इज इट ट्रू? फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, चलो, ये बताया, धवल ने बताया। ओके, वेरी गुड। चलो, व्हाट अबाउट अदर्स? जयवी? ओके, पार्थ ने भी यस बोल दिया। ओके, रिजॉइस ने भी, गुड, वेरी गुड रिजॉइस, यस ट्रू। जयवी? True, sir. ट्रू। ओके, हाउ इज इट ट्रू? कैसे ट्रू बोला आपने सभी ने? Sir, sandwich rule, sir. साइन? Sandwich rule. सैंडविच रूल। Sir, yes, sir. Sir, sin 1 upon x है. वन बाय वन, यस। पार्थ बोलो, चलो, ओके, धवल बोलो, चलो। सर, sin 1 by x है, वो -1 से 1 में ही होगा। यस। ठीक है सर। सर, तो हमने वो इक्वालिटी ले ली कि -1 लेस देन और इक्वल टू साइन अपॉन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। वेरी गुड। देन हमने x दोनों साइड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिए। ओके, देन हमने सब जगह ये साइन वो सैंडविच रूल अप्लाई करेंगे, तो इन दोनों का जो लिमिट है
माइनस एक्स और एक्स का लिमिट वो जीरो अ, आएगा, है ना, जीरो हाँ आएगा, जीरो लिमिट आएगा। तो सैंडविच रूल से हम ये कह सकते हैं कि इसका भी लिमिट एक्स इंटू साइन वन अपॉन एक्स का भी लिमिट जीरो आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो एवरीबडी एग्री विथ धवल्स आंसर? Yes, एवरीबडी? sir. Yes, sir. ओके ओके, सो इज देयर एनी आंसर? जेवी, आपका कोई दूसरा आंसर है? No, sir. ओके ओके, सो इज इट ट्रू? ओके, और अगर आपको देखना है तो आई कैन ऑल्सो share graphical representation of this one, so you can see on your screen. Okay, so here you see that limit x tends to 0 sin x upon x is equal to 1 sandwich theorem से ये ओके, ये तो दूसरा वाला है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। ओके, आई वांट टू फाइंड x into, you can see here, x into sine 1 upon x. Okay, so 1 by x. So if you calculate it, then you will get your graphical representation, series expansion, all these are here. So you can see here, this is the graphical representation of the x into sine 1 upon x, and if you find the limit at x, then it comes to 0. Okay everybody, नेगेटिव साइड से और पॉजिटिव साइड से, दोनों साइड से वो जीरो की ओर ही जा रहा है। डन, गॉट इट? Is it okay? Yes, sir. Okay. Thank you for your confirmation. Okay. Now think about second one. What is the answer of second? Limit x tends to 0, x cos 1 upon x is equal to 0. So is it true? So this is true. Okay. Yes. और यहाँ पे R लिखा है. That means more than one statement is there. Okay. Which is true. So यहाँ पे first तो true हो गया. चलो. X into cos 1 upon x, x tends to 0 is 0. What about your answer? चलो आंसर बताओ। कोई आंसर नहीं दे रहा है, क्या बात है? सर सेम मेथड से ही होगा ना? ट्रू Yes. लेकिन ट्रू है या फॉल्स है, पहले वो डिस्कस करते हैं। चलो, इज इट ट्रू? ट्रू ट्रू ट्रू। ओके, यस चलो, सर ट्रू। धवल ने ट्रू बोल दिया। व्हाट इज द अदर्स आंसर? ओके, स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो मैं बता देता हूँ आपको, ट्रू। और सेम मेथड यहाँ पे यू कैन फॉलो इट। चलो, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं ना एवरीबॉडी? यस सर। ओके, देन थर्ड वन यूनिवर्सल ट्रू है, वो तो हर एक जगह पे दिखाई देता है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x. यस सर। ओके, सो इज इट ऑल्सो ट्रू? और आपने 11th-12th में इसको स्टडी भी कर दिया था। सारे एग्जाम्पल वही से है, लेकिन दिस विल आस्क इन गेट एग्जामिनेशन। ओके, देन जीपीएससी, देन ये जीसेट, नेट, इसी तरीके से आपको पूछे जाते हैं। द लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x upon x. सर फॉल्स है। False है, very good. Okay, what about others? What is the answer of others? Yes, JV. False. Okay, Parth, Sachin and Anirudh. Any other answer? Okay, false. Okay, सही। मैंने अभी बोला था कि मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन आप लोग रिप्लाई कर दोगे तो नहीं बोलूंगा। ओके लेकिन प्लीज रिप्लाई। चलो, फॉल्स है, तो ट्रू क्या है? जीरो आना चाहिए सर। जीरो आना cos चाहिए। x ओके, upon x लिमिट x टेंड्स टू जीरो आना चाहिए। सही है जीरो वाला। जीरो वाला सही है।
नो इट इज नॉट ट्रू. ओके धवल, जीरो नहीं आएगा बेटा. नहीं आएगा, क्या आएगा जयवी? जीरो नहीं आएगा. हम जब ग्राफ देखेंगे cos x बाय x का तो वो जीरो के आसपास आता ही नहीं है सर. यस वेरी गुड. ओके चलो ग्राफ भी देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ. यस यू कैन सी हियर. यस आई चेंज माय फंक्शन एज x, नहीं cos है ना, तो cos divide by x and my limit is limit x tends to 0. Okay, done. तो आंसर क्या आया एवरीबॉडी? लुक एट हियर. व्हाट इज द आंसर? लिमिट डज नॉट और जीरो एग्जिस्ट. माइनस के लिए अलग अलग आंसर आएगा. यस वेरी गुड. सो धवल आर यू गेटिंग पॉइंट? Yes, sir. Okay, so you can see here, if you consider limit x tends to 0 minus, then cos x upon x will be minus infinity. You can see negative side. Okay, zero वो zero नहीं आ रहा है, वो कहाँ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी की ओर चलता जा रहा है, नेगेटिव साइड पे. ओके, एंड अगर इफ यू कंसिडर द पॉजिटिव ऑफ जीरो, दैट मीन्स जीरो प्लस, देन योर ग्राफ विल बी टेंड्स टू द इनफाइनाइट. ओके डन. फिर यहाँ पे ऊपर जाएगा. यस done everybody. Any doubt? No, sir. So limit does not exist. तो इसके पास कोई लिमिट ही नहीं है, जीरो भी नहीं है एंड वो भी नहीं है. ओके, infinite भी, that means you can say that limit does not exist. Now we come to our presentation. Yes, come back. Yes, second. चलो अब यही करना है हमको आज. Which of the following functions f from R2 to R are continuous at the origin? Why I select this question? Because for continuity we have the three properties to satisfy. Which are they? कोई बताएगा मुझे continuity के लिए कौन कौन सी properties हम satisfy करते हैं और कौन कौन से step करते हैं? Anybody? Left hand side limit, right hand side limit, and at the point limit are At the equals, then it's continuous. यस तो इसमें मेरा लिमिट कॉन्सेप्ट भी आ जाता है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल को सिलेक्ट किया है ना, क्योंकि कंटिन्यूटी में लिमिट भी आ जाएगा तो मुझे लिमिट अलग से नहीं करवाना पड़ेगा. इज इट ओके एवरीबॉडी? सो अवर डेफिनेशन क्या है वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज अवर डेफिनेशन? चलो व्हाट इज अवर डेफिनेशन? सो फंक्शन टू वेरिएबल में अगर बात करें, एफ ऑफ एक्स वाई is said to be continuous at a point AB if limit xy tends to AB, f of xy is equal to f of AB. So we have to first, in step 1 we have to calculate left hand side, that means limit xy tends to AB f of xy, and step 2 find out the right hand side, that means f of AB, and step number 3, if both are same then we can say that it is continuous, otherwise we say that it is not continuous. Okay everybody? Yes, sir. Okay, now tell me how we can find the limit for two variable. चलो two variable के लिए लिमिट कैसे फाइंड करते थे? Anybody? First we put x1 is equal to mx2, or second we put x1 is equal to x2 raised to m. Then if both the limit are same then we can say that limit exists. Okay, but उससे पहले इस देवी वो चेक नहीं करना पड़ेगा कि if your limit x y tends to 0 0 है तभी हम वो y is equal to mx and y is equal to mx square के लिए जाएंगे ना. अगर वो डिफरेंट है, 0 0 के अलावा है, देन इट्स ओके, देन हमको आगे जाने की जरूरत है. y is equal to mx, y is equal to mx square वो कब ले सकते हैं जयवीर?
एक्स वाई टेंस टू 0 0 होगा। यस, अगर आपका पॉइंट 0 0 है then you can extend your concept to y is equal to mx, y is equal to mx square and so on. Okay, जहां तक आपको लेना है. But if your limit are not equal to 0 0 means अगर tends to 1 2 है तो you have to check only that if your left hand limit and right hand limit are same then you can say that limit exists, otherwise you say that limit does not exist. Okay, जो भी है उसके लिए अगर नॉन जीरो पॉइंट है तो अगर 0 0 है तो फर्स्ट आपको क्या करना है 0 0 के लिए 2 बार चेक कर लेना है कि मीन्स अगर आप x टेंस टू 0 पहले लेते हो देन y टेंस टू 0 लेते हो देन सेकंड केस इज x टेंस टू 0 पहले लो y टेंस टू 0 मीन्स आपको रिवर्स करके देखना है वो 0 0 वाला खत्म हो जाए उसके बाद यू टेक y इज इक्वल टू mx एंड y इज इक्वल टू mx स्क्वायर देन यू डिसाइड योर लिमिट. अगर आपका ये 4 स्टेप में आंसर दिखाई दे रहा है देन इट्स ओके, अदरवाइज यू कैन से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इफ इज देयर एनी वेरिएशन इन द लिमिट ऑफ दिस 4 स्टेप. अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? यस सर. ओके, चलो फर्स्ट के लिए स्टार्ट करो. चलो फर्स्ट के लिए स्टार्ट करो. Which of the following limits f r2 to r are continuous at the origin? Means यहाँ पे origin ही दिया है आपको. So you have to find out the limit x tends to 0 for f of x. लेकिन यहाँ पे r2 में से x आया है, that is x belongs to r2. So you can consider here because in each statement there is x1 x2. So you can say that x1 x2 tends to 0 0 f of x1 x2 के लिए आपको सोचना है. Okay, done everybody? Do you understand? यस सर. Okay, चलो फर्स्ट के लिए ट्राई करो everybody. Then I will explain first. फर्स्ट कंटिन्यू. फर्स्ट कंटिन्यूस. ओके, जैवी का आंसर मिल गया है. चलो कंटिन्यूस. बाकी सब लोग चेक करेंगे. ओके, उसके बाद ही बताना. धवल कहाँ चला गया फिर? ओके, आ जाएगा. चलो चलो फर्स्ट के लिए चेक करो तो वेरीफाई करो क्या हो रहा है, इफ इट सेटिस्फाई अवर डेफिनेशन और नॉट. प्लीज रिप्लाई. हाँ, जितना जल्दी मिले उतना रिप्लाई करो. मिल जाता है तो रिप्लाई करना है तो हम आगे बढ़ पाए, है ना. एनीबडी अदर देन जैवी? जैवी का तो आंसर आ गया है ना. तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट वन इज कंटिन्यूस. चलो बाकी सबका क्या आंसर है एक बार बता दो जल्दी. धवल एंड पार्थ ट्राई किया आप लोगों ने? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मेरा नेट कनेक्टिविटी अभी ज्वाइन हुआ फिर से. नो प्रॉब्लम धवल, नो प्रॉब्लम. ओके, मैं सबका नाम नहीं बोल रहा हूँ, जनरल पूछ रहा हूँ. प्लीज रिप्लाई. यू कैन राइट डाउन योर आंसर इन चैट बॉक्स ऑल्सो. अगर आपको नहीं बोलना है तो आप चैट बॉक्स में भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. जो भी है यस नो जो भी है, कंटिन्यूस होगा तो कंटिन्यूस लिखो, नॉट कंटिन्यूस तो नॉट कंटिन्यूस लिखो. हम किसी को प्राइज नहीं देने वाले हैं ना, और किसी को डिमोरलाइज भी नहीं करना है.
सिर्फ वी वांट टू डिस्कस इट व्हाई इट हैपन्स, ओके, कि कंटिन्यूअस है तो व्हाई इट इज कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस नहीं है तो व्हाई इट इज नॉट कंटिन्यूअस. तो फिर मैं करवाऊँ फर्स्ट एग्जांपल एवरीबॉडी. आपको सेकंड थर्ड फोर्थ कर पाएंगे ना फिर आप? यस सर. ओके Yes, चलो. sir. ओके चलो फर्स्ट से चलते हैं. ओके जयवी, पहले जयवी को पूछ लेते हैं. जयवी, हाउ यू डिसाइड दैट इट इज कंटिन्यूअस? Put x2 is equal to 2x1 first. x2 is equal to 2x1. ओके डायरेक्टली पहुंच गए आप तो. ओके x2 is equal to 2x1 है ना? वही किया ना आपने? क्या रखा? x2 is equal to, फिर से बताओ तो जयवी. x2 is equal to 2x1 and then 2x. x2 is equal to x1 square. ओके दैट मीन्स उन्होंने ये फॉलो किया y इज इक्वल टू mx एंड y इज इक्वल टू mx स्क्वायर. ओके तो उस हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया. चलो हम वन बाय वन करते हैं. तो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज, कैसे करना है अगर आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, सो यू गो थ्रू दिस वे. x1 स्क्वायर x2 डिवाइड बाय x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर व्हेन इफ x not equal to 0. If x not equal to 0, that means x1 x2 not equal to 0 0. Okay, because we are dealing with f from r2 to r. In second one is 0 if x is equal to 0. So first step, if you go with the first step, then you have to find out limit x tends to 0 f of x. So limit x1 x2 tends to 0 0 f of x1 x2. Now limit x1 x2 tends to 0 0. Here you have x1 square x2 divided by x1 square plus x2 square. Now you can split this one. That means if you first go with limit x1 tends to 0 outside, limit x2 tends to 0 inside, and x1 square x2 divided by x1 square x2 square. चलो इनर साइड का आंसर क्या आएगा एवरीबॉडी? वो तो आप कर सकते हो ना. इट इज वेरी इजी क्योंकि देयर इज वन वेरिएबल ओनली. चलो क्या आएगा आंसर? 0. 0. ओके एवरीबॉडी डन? सभी को वही मिलेगा ना? यस और नो? Yes. यस सर. सो अगर इनर साइड का आंसर 0 है तो टोटल लिमिट इज आल्सो 0. तो फर्स्ट केस हो गया. चलो नाउ वी गो फॉर द सेकंड वन. सो सेकंड में क्या करना है, इसको उल्टा कर देते हैं जैसे हमने किया है वैसे. सो लिमिट x2 टेंड्स टू 0 आउटसाइड एंड limit x1 tends to 0 inside and x1 square x2 divided by x1 square plus x2 square. So we will get again limit x2 tends to 0. क्या आएगा इनसाइड का? 0 आएगा कि नहीं? Yes, sir. अब ये बोथ आर 0, देन यू कैन गो फॉर द थर्ड स्टेप. अगर आपका दोनों आंसर सेम आ रहा है तभी आपको थर्ड स्टेप करना है. और थर्ड स्टेप क्या है? y इज इक्वल टू mx वाला. ओके सो यहाँ पे आपको लेना है लिमिट, यहाँ पे x1 टेंड्स टू 0 आउटसाइड रख रहा हूँ, लिमिट x2 टेंड्स टू mx. ओके एंड हियर x1 स्क्वायर x2 डिवाइड बाय x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर. चलो इसका आंसर बताओ क्या आएगा इनसाइड का? इनसाइड का दैट मींस रिप्लेस x2 इज इक्वल टू mx. सो हियर वी हैव mx1, mx1. So here we have x1 square into mx1 divide by m square, x1 की जगह पे नहीं x2 की जगह पे. yes, so yeah, here we have x1 square plus m square x1 square. okay, so is equal to limit x1 tends to 0 m x1 cube divide by x1
square into 1 plus m square. So what is our answer? इसका आंसर क्या मिलेगा? 0. 0. Very good. So now we have the 3 cases and 3 cases has the limit 0. Now we go for the fourth one. फोर्थ वन के लिए जाना पड़ेगा. अगर सेम आता है तभी नेक्स्ट के लिए जाना है. ओके, अगर डिफरेंट मिल गया दैट मीन्स यू कैन से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. बट हियर नेक्स्ट वन इज लिमिट x1 टेंड्स टू 0, लिमिट x2 टेंड्स टू mx1 स्क्वायर, mx स्क्वायर. ओके, mx स्क्वायर जो सेकंड केस था हमारा, जो अभी जयवी ने भी बताया था, है ना. सो x2 टेंड्स टू mx1 स्क्वायर. सो वी हैव आवर original function is x1 square x2 divided by x1 square plus x2 square. So is equal to limit x1 tends to 0 और यहाँ पे आपको मिलेगा x1 square, here again m x1 square, yes, divide by here x1 square as it is, and we have m square x1 raised to 4. Yes, 4. Okay, so limit x1 tends to 0 and here we have m x1 raised to 4 divided by x1 square plus m square x1 raised to 4. So again, what is our answer? 0. 0. Okay, 0. Okay, our answer is 0. Very good. This is true for all m. Yes or no, everybody? अब कुछ भी y यहाँ पे हमने देखा कि x2 tends to mx1 square, then if we go with x2 tends to mx1 raised to n, then it is always true. Yes or no? Yes, sir. Okay. What about others? Yes, sir. Okay, so that means Yes, sir. our limit of x1 x2 tends to 0 0, and here your f of xy means x1 square x2 divided by x1 square plus x2 square is equal to always 0, है ना? Done, everybody? Yes, sir. And same way limit x1 x2 tends to 0 0, और यहाँ पे अगर आप सॉरी नो सॉरी दिस इज नॉट ट्रू, वो तो हमने कर दिया. सेकंड वन इज द f of 0 0. यस, f of 0 0. सो f of 0 0 के लिए हमारा फंक्शन क्या है? क्या है f of 0 0 के लिए? What is our function? Value 0 na? Yes, 0. So this is our 0. Okay, so f of 0 is equal to 0 and limit is also 0. So that means limit of x tends to 0, f of x is equal to f of 0. Yes or no? Yes, sir. Therefore, given function is continuous at origin. Is it okay, everybody? Yes, sir. Okay. Understand? सबको पता चल गया किसी फाइंड करना है. ओके, चलो. ये है ना जीपीएससी में भी मैंने 2-3 बार दिया है, तो उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन देखा था, है ना. तो थोड़ा ध्यान रखना. और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन होंगे ही होंगे. कंटिन्यूस होगा या फिर डिफरेंशिएबिलिटी होगा, है ना, या फिर लिमिट होगा. ये तीनों में से वो ट्विस्ट करते रहते हैं 2 वेरिएबल के लिए. सो थोड़ा ध्यान रखना. यस, चलो सेकंड के लिए अब सेम तरीके से मुझे बताओ. चलो एवरीबॉडी, जयवी, इज इट ओके?
Sir. Sir, here any shortcut method? This is very long. Yes, I understand. I understand. I will also explain that, है ना, later on. मैं आपको शॉर्टकट भी सिखा रहा हूँ कैसे चेक करना है, लेकिन प्रॉपर मेथड यही है ना? तो प्रॉपर मेथड अगर हमको लर्न करना है तो यू हैव टू फॉलो ऑल दीज स्टेप्स. ओके जेवी? ओके डन. चलो सेकंड नंबर, चलो सेकंड नंबर का ट्राई करो तो एवरीबॉडी क्या आ रहा है बताओ. ओके एनीबॉडी ट्राई. जल्दी करो, हाँ, डू फास्ट. क्या आंसर है? ओके आंसर क्या है एवरीबॉडी? जल्दी, हाँ थोड़ा जल्दी करो. Continuous, sir. कंटिन्यूअस. ओके सचिन, वेरी गुड. चलो बाकी सर सबका. कंटिन्यूअस. धवल वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. Continuous. कंटिन्यूअस अनिरुद्ध, वाव. जयवी? सर मेरा तो कुछ अलग ही आ रहा है. क्या आ रहा है आपका? क्या आ रहा है जयवी? अलग आए वो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ नया सीखने को मिलेगा, उसमें क्या है ना? क्या आ रहा है जयवी आंसर? नॉट कंटिन्यूअस. कंटिन्यूस तो नहीं आ रहा मेरा. कंटिन्यूअस नहीं आ रहा है. ओके, कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ? कौन से स्टेप पे? सर मैं फिर से ट्राई करती हूँ. ओके फिर से ट्राई करो. चलो गुड गुड, वेरी गुड. ओके बाकी सबको कंटिन्यूअस मिला है ना? चलो तो फिर यहाँ पे जल्दी से मुझे बताओ. आई वांट टू नो अबाउट द केस फोर्थ वन. ओके, लिमिट x1 टेंड्स टू 0, लिमिट x2 टेंड्स टू mx1 स्क्वायर f of x1 x2. चलो इसका आंसर क्या आया? सभी ने ट्राई तो किया ना, तो इसका आंसर क्या आया? 0. यस, लिमिट x टेंड्स टू 0. और इसका अगर आप देखेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए x1 क्यूब इंटू mx1, दैट मीन्स mx1 रेज टू 5. ओके, डिवाइड बाय यहाँ पे आपके पास होगा x1 रेज टू 4 प्लस x2 स्क्वायर. x2 स्क्वायर में आपका आएगा m स्क्वायर x1 रेज टू 4. यस और नो? यस सर. है ना? तो यहाँ पे आपका सीधा यही बाकी बचेगा, x1 बाकी बचेगा, है ना? सो वो x1 की वजह से वो आपका 0 हो जा रहा है. डन? Yes. ओके, यस. अब डिसकंटिन्यूअस आएगा तो कैसा यहाँ पे दिखेगा, कोई बताएगा मुझे? इनकी वैल्यू यहाँ ही नहीं होगी. हाँ क्या होगा?
की वैल्यू x1 सर वेरिएबल ही कुछ नहीं होगा। वैल्यू आएगी। नहीं, उसमें ऐसा नहीं होगा। देखो मैं आपको एक शॉर्टकट, 1/x1 आएगा वहाँ नहीं पे नहीं 1/x1 भी नहीं आएगा, 1/x1 भी नहीं आएगा। देखो मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो आपको बता रहा हूँ कि लिमिट x1 टेंड्स टू 0, और यहाँ पे जो आंसर है ना वो m में ही पूरा रहेगा एज इट इज। दैट मीन्स m² + 1 या कुछ भी हो सकता है। मीन्स यहाँ पे x1 होगा ही नहीं। अंडरस्टैंड? तो इसका लिमिट का आंसर m वाला खुद आ जाएगा। इज इट ओके? यस सर। यस सर। उस टाइप पे क्या होगा, देयर आर मेनी आंसर, है ना, इनफाइनाइट मेनी आंसर हो जाएंगे उसके लिए लिमिट के। दैट मीन्स यू कैन से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अंडरस्टैंड? डिसकंटिन्यूअस में कैसा आएगा? एवरीबॉडी गॉट इट? Yes. यस सर। ओके, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। चलो ये 0 आया, f ऑफ 0 तो 0 ही है, तो ये हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। जयवी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो सर। हो गया ना? कंटिन्यूअस मिल गया? यस सर। ओके ओके। देन नेक्स्ट वन, चलो नेक्स्ट वन में होमवर्क में दूं? नहीं, चलो ये थर्ड वाला करते, फोर्थ वाला नहीं करते। होमवर्क में दे रहा हूँ फोर्थ वाला। चलो थर्ड वाला जल्दी बताओ मुझे, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस? सीधा ये केस चेक करो तो भी चलेगा, है ना? अभी फिलहाल अभी के लिए, हाँ, मैं एग्जाम में तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए ये चेक करो, y = mx वाला या फिर y = mx² वाला। सर डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यूअस कैसे बता दिया आपने? सर mx वाले में m/1 + m² मिलेगा, सब x1 वाले कैंसिल हो जाएंगे। यस, तो ये सही आया ना कुछ, यस सर। है ना? m में आंसर आएगा आपका लिमिट में। दैट मीन्स लिमिट हैज द मेनी आंसर, इनफाइनाइट मेनी आंसर्स। सो यू कैन से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हुआ तो सेकंड स्टेप जाने की जरूरत ही नहीं है, वो एट अ पॉइंट वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो वो सीधा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। सो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? यस सर। है ना? यस सर। सर और सबको मिल गया डिसकंटिन्यूअस? है किसी को अभी भी डाउट है डिसकंटिन्यूटी में? नहीं सर, मिल गया आंसर। हो गया ना? रिजॉइस डन? समझ में आ गया ना रिजॉइस? हाँ सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके चलो जयवी, आपको डिसकंटिन्यूअस मिला कि नहीं? क्या हुआ जयवी? आई डोंट लिसन यू। सर मिल गया डिसकंटिन्यूअस। ओके ओके गुड। दैट मीन्स सबको मिल गया। मैंने सचिन ने भी बोला, है ना, धवल ने भी बोला, अनिरुद्ध को मैं भूल गया पूछने का। अनिरुद्ध, गॉट इट? Yes sir, मिल गया। Okay. Yes sir. Thank you everybody. Yes, that means you can get your 1 marks, है ना, in any competitive examination, no problem. Okay, चलो अब देखो मैं एक शॉर्टकट में जो देखता हूँ ना वो आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन समटाइम्स इट मे नॉट बी ट्रू। ओके, कभी कभी वो ट्रू नहीं भी हो सकता है, तो थोड़ा ये प्रोसीजर को ही फॉलो करो। लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में अगर हमारे पास टाइम नहीं है एंड वी वांट टू से इट इज कंटिन्यूअस और नॉट, वी वांट टू चेक इट। सो देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, तो फर्स्ट में अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा ना, तो न्यूमरेटर के पास डिनोमिनेटर से ज्यादा पावर है। यस और नो? टोटल पावर बोल रहा हूं मैं। यस सर। Yes. सेकंड में भी देखो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का पावर ऑब्जर्व करो, तो क्या है, टोटल पावर ऊपर का एंड नीचे का सेम है यस सर। है ना? ऊपर 4 है, नीचे भी 4 है। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है। तो ये जब सेम वाले होते हैं ना, वो बहुत ही हमको डिफिकल्टी में डाल देते हैं। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली से, देखो यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे x1² इंटू x2, तो टोटल इज 3 न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में टोटल इज 4। सो यहाँ पे जब इस टाइप की सिचुएशन होगी कि न्यूमरेटर छोटा है, तब वो आपको मोस्ट प्रोबेबली डिसकंटिन्यूअस ही मिलेगा। दिस इज दी लॉजिकली, ओके, मीन्स ये कोई मेथड नहीं है, लेकिन वी कैन डिसाइड इट बाय दिस वे ऑल्सो। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? फर्स्ट में भी आप देख सकते हो कि ऊपर 3 था, नीचे 4 था,
तो इसी की वजह, सॉरी नीचे 2 था, नीचे 2 है, इसी की वजह से वो कंटिन्यूस हो रहा था, क्योंकि लास्ट में हम बाहर वाला ऑपरेटर रख रहे हैं, मींस बाहर वाली वैल्यू, सो दैट्स व्हाई दिस बिकम 0 एंड यहाँ पे आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा और m में ही आंसर आएगा, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा पावर, है ना, उसी की वजह से। सो इज इट क्लियर एवरीबॉडी? इस हिसाब से भी जब जल्दबाजी में अगर आपको आंसर देना है तो यू कैन यूज दिस लॉजिक। ओके जयवीन, इज इट ओके? This logic doesn't work every time. मैंने वही तो बोला, मैंने पहले ही बोला कि इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल टाइम, है ना, लेकिन जब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, वी वांट टू डू इट, ओके, हमको उसको हैंडल करना है, देन वी कैन डू इट। मैंने अभी बोला कि जब इक्वल है देन इट इज नॉट ट्रू, मीन्स वो तो आपको चेक करना ही पड़ेगा, लेकिन जब थोड़ा ऊपर नीचे है, थोड़ा वेरिएशन में, देन यू कैन अप्लाई इट एंड यू विल गेट योर आंसर ऑल्सो, लेकिन यू हैव टू वेरीफाई फर्स्ट, ओके, वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर टाइम नहीं है देन यू कैन डू इट, अदरवाइज डोंट डू इट। डन? ओके Sir. okay, and I already give this in the homework, so Jaivi will explain this in the next class. Jaivi, आपने कर दिया है ना ये एक्सरसाइज? हाँ, तो आपको नेक्स्ट क्लास में इससे हम स्टार्ट करेंगे, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, है ना, तो ये सब लोगों को भी ये सॉल्व हो जाएगा। ओके एवरीबॉडी? Sir. हाँ बोलो जयवी। ओके सर, कुछ नहीं। ओके ओके, चलो, उन्होंने किया है इसीलिए, बाकी कोई ने ट्राई किया है? किसी ने ट्राई किया है, ऐसा है तो मैं आप दोनों को भी दे सकता हूँ, है ना। सचिन, यस सचिन। लास्ट वाला ट्राई किया था। ओके कोई बात नहीं, तो सचिन हम डिस्कस करेंगे पहले, है ना, उसके बाद जो भी होगा उसके लिए हम जयवी को बोलेंगे कि जयवी ये थोड़ा देखते हैं कैसे होता है ना। सचिन आपका भी पहले डिस्कशन कर लेंगे, तो सचिन एंड जयवी दोनों मिलके इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके एवरीबॉडी? ओके सर। ओके, और बाकी सबको भी हम 1 बाय 1 जो भी आपको इजी लगता है यू कैन ट्राई इट, है ना। आप अगर ट्राई करेंगे तो एंड आई विल गिव यू अ चांस ऑल्सो। जो भी कर पाता है वो करो, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जो भी कर पाता है उसको करना है, देन वी विल डिस्कस इट। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स है, तो 4 लोग अगर कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, इट इज गुड फॉर यू, है ना, क्योंकि एक करेंगे तो दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा, और इतना बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये। सो यू कैन यूज ओनली द डेफिनेशन ऑफ द इनर प्रोडक्ट, ओके, नॉर्म, है ना, नॉर्म की डेफिनेशन यूज करके इसको करना है। इट इज नॉट वेरी लेंथी और नॉट वेरी डिफिकल्ट, सो यू कैन ट्राई इट other student. Okay, so is there any doubt, any question in today's session? No sir. Okay, so good day.